It has finally happened. The Japanese central bank has finally intervened, and we have seen a Japanese yen intervention. As you can see on my screen, हम काफ़ी dramatically and aggressively हमने एक move lower देखा है in the yen pairs, and I'll be talking about those in a bit more detail in this video. Also, I took a couple of losses because of this intervention. Like, I tried to enter after we saw the intervention on Thursday, but unfortunately that didn't work out. So I'll talk about that also, and plus I took a couple of positions in GBP USD and Euro USD. So I'll be talking about those as well. So with that, let's get into this video. My entry was here, and then my stop loss was like below this level, but I my stop loss did get tagged, and I took a loss of about $44. But uske baad bhi we saw rejection on the day, and I thought that maybe, we're kind of seeing like a buy the dip opportunity in the yen, against the yen, because honestly, like, yen as a currency still does not look that strong because of the macroeconomic conditions that we have, and because their economy is still kind of struggling. So जो macro environment है वो still yen को support नहीं कर रहा है, and चाहे central bank enter करे या intervene करे या ना करे, उससे वो चीज़ change नहीं होती है. So I thought that, maybe we were seeing like kind of like a rally in CAD yen, but that did not unfortunately happen. And so मैंने पहली बार जब मैंने ट्रेड एंटर किया तो आई गॉट स्टॉप्ड आउट फॉर $44, लाइक आई सेड. बट देन आई ट्राई टू एंटर द ट्रेड अगेन जब हमने देखा ये पुश हायर ऑन द सेकेंड डे. सो आई एंटर्ड द ट्रेड अगेन विद द सेम स्टॉप लॉस, बट अनफॉर्चुनेटली दैट ऑल्सो डिडंट वर्क इन माई फेवर. सो आई थिंक आई डेफिनेटली नीड टू इवेलुएट दिस पोजिशन. आई थिंक मे बी मेरे को लाइक नहीं करना चाहिए था एंटर ये ट्रेड, बट ऑनेस्टली लाइक फंडामेंटली मेरे पास वो रीडिंग थी. टेक्निकली भी दिस वाज लाइक अ गुड सपोर्ट लेवल. हमने कैडियन के अंदर पहले भी यहाँ पे काफ़ी बार होल्ड किया था, सो इसलिए मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लग रहा था. प्लस वी हैड द 200-day मूविंग एवरेज, सो आई थॉट दैट बायर्स वुड टेक कंट्रोल ओवर हियर, बट दैट अनफॉर्चुनेटली डिडंट हैपन फॉर मी this time around. But that's completely fine. It was a very controlled loss, even though like I lost $100 betting against the yen. But that is fine, and it's like a part of trading, so you can't really do much about it. For my idea and for my theory, I don't think the trade was wrong or anything like that. Maybe I could have waited around to see some kind of rejection. But like for the first trade, I didn't do that. But for the second trade, I did see some rejection coming into this chart. But unfortunately, वो एक rally भी sustain नहीं हो पाई, and I got stopped out again. So yeah, that was my trade in CAD yen, and I tried to go long. So as for the trades that are working in my favor, first one has to be GBP USD. So initially मैंने ये trade लिया था at this level at 1.33419. So यहाँ पे मैंने trade enter किया था at this green line that you see on my screen. And यहाँ से like we saw a sharp pullback, then we rallied higher. So ये trade काफ़ी एक मेरे favor में जा रहा है. And like we saw a pullback again from this level. So मेरी thinking ये थी कि I would like add more exposure to this trade, because इसके अंदर मैंने एक TP1 ले चुका है at 1.344. So I booked around $60 in this trade already. And मेरी thinking ये थी कि अगर हम ये 100-day मूविंग एवरेज जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर ये टेस्ट करेंगे अराउंड द 0.5 फिब लेवल, तो मैं इंटरेस्टेड था कि मैं एक और यहाँ पे पोजिशन एंटर कर सकता हूँ, लाइक विद स्मॉलर रिस्क, and my stop loss would be like somewhere below this level. And फिर यहाँ से I could like enter this trade again and like with more exposure. So अभी के लिए मेरे पास position है इस trade के अंदर. मैंने यहाँ पे partial ज़रूर लिए थे at 1.344. So I think मैंने like about 0.5 जो आधा trade था मैंने वो book कर दिया था. But like I still have some exposure in this trade, like half of it is still there. So I was still interested in taking another stab at this, like adding to my exposure, because मेरे को GBP USD honestly fundamentally काफ़ी strong लग रहा है at this time, because recently भी हमने थोड़ा weak data आता देखा है US की side से, like we had weak GDP growth and unemployment claims भी उतने strong नहीं थे. So कहीं ना कहीं हम US economy से weakness देख पा रहे हैं definitely. And with the new data that we have coming this week with the NFP, I think that is also something that we'll have to watch to see
कि एक्चुअली यूएस इकोनॉमी का कैसा डेटा आ रहा है एंड लेबर मार्केट का अभी भी स्टेबली होल्ड कर रहा है. बट या अभी भी ये ट्रेड अच्छा जा रहा है मेरे, एंड देयर इज नथिंग फॉर मी टू डू राइट नाउ. The next take profit that I have is at this level that you can see on my screen at about 1.35267. So ये काफ़ी एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड बन गया है मेरे लिए, बिकॉज माई इनिशियल स्टॉप लॉस वाज जस्ट दिस मच एंड लाइक अभी तक अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने पहला TP1 बुक किया एट 2.1:3 का रेशियो ऑलमोस्ट, एंड जो मैं फाइनल बुक करूँगा दैट वुड बी एट 1:5, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ फॉरेक्स ट्रेड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ट्रेड. Moving on, like let me just move on to another trade that I took in Euro USD. So आपने देखा कि मैं GBP USD के अंदर मैं वो ट्रेड एंटर नहीं कर पाया आफ्टर दिस रीसेंट पुल बैक, बट इसके अंदर मैंने एक्चुअली ट्रेड एंटर किया. माय एंट्री वाज हियर एट 1.1467 एंड उसके बाद से वी कैन सी कि एक काफ़ी शार्प रैली हमने वापस देखी एंड बायर्स हैव डेफिनेटली कम बैक इनटू द पिक्चर आफ्टर दिस वेरी ब्रीफ पुल बैक. सो ये ट्रेड भी अभी के लिए मेरे लिए अच्छा लग रहा है, एंड ऑल्दो मेरा इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैंने वाइड रखा था बिकॉज आई डेंट रियली नो कि क्या होगा, एंड आई वांटेड टू जस्ट गिव द ट्रेड सम रूम टू रन, एंड एज यू कैन सी मैंने थोड़ा सा वाइड रखा था स्टॉप लॉस. बट दिस इज अ ट्रेड दैट आई एम ओके विद होल्डिंग. लाइक आई सेड, आई थिंक द डॉलर is looking a bit weak right now, but we'll definitely have to watch out for the labor data that we have next week. अगर हम देखते हैं उसमें भी signs of weakness, then मेरी bias काफ़ी decisively bearish USD हो सकती है, but अभी के लिए वो नहीं है. So I'm looking like somewhere around maybe this 200-day moving average to book my profits in Euro USD. But if I do like take partials before that level, I'll also notify you guys either on my social like Instagram account, or I'll make another video about this like I always do next week. So yeah, talking about the dollar now, ये चार्ट डेफिनेटली अब लाइक थोड़ा बेरिश टर्न हो गया है बिकॉज वी कैन सी क्लियरली सी कि जो लेवल्स ऑफ पास्ट सपोर्ट थे वो अब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन रहे हैं, एंड ये जो ट्रेंड लाइन थी हम इसके भी नीचे डिसाइसिवली मूव कर गए हैं. सो आई थिंक दिस इज बिकॉज मेनली जो हमारा जो फेड है, आई थिंक दैट हैज टर्न लाइक काइंड ऑफ, मार्केट ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हॉकिश होगा, करेंसी को सपोर्ट करेगा, बट आई थिंक कहीं ना कहीं अभी के लिए जो हमारे फेड चेयर हैं दैट इज केविन वॉश, वो कहीं ना कहीं एक डविश स्टांस ही रख रहे हैं. जो कमेंट्री उनकी है वो बार बार डविश साउंड कर रही है, एंड आई थिंक वही चीज़ मार्केट्स को एंड लाइक डॉलर को लोअर मूव करा रही है. सो लाइक पहले हमने पास्ट में देखा था कि जब when he initially came and gave his first speech, तो काफ़ी एक बुलिश लाइक कमेंट्री थी फॉर द डॉलर, लाइक हॉकिश थी करेंसी के लिए. उन्होंने काफ़ी लाइक इन्फ्लेशन के बारे में बात की, बट सिंस देन आई थिंक दिस मार्केट इज नाउ कूलिंग डाउन एंड डॉलर इज कूलिंग डाउन बिकॉज कहीं ना कहीं वो कमेंट्री स्विच होती हुई देखी हमने, एंड जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था फॉर केविन वॉश टू बी हॉकिश वो हम क्लियरली नहीं देख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो स्टांस डेफिनेटली चेंज हुआ है. एंड वही चीज़ हम फिर प्राइस एक्शन में देख रहे हैं. जो टेक्निकल फैक्टर्स पे हम देख पा रहे हैं कि वी आर करंटली टेस्टिंग द 100-day मूविंग एवरेज, वी हैव ऑलरेडी मूव्ड लोअर एंड वी लाइक क्रॉस्ड द 50-day मूविंग एवरेज जो यहाँ पे थी, एंड ये सपोर्ट लेवल भी हमने ब्रेक किया है. आई थिंक अगर यहाँ से लाइक बुल्स को अगर मूव करना होता तो आई थिंक वी वुड हैव लाइक वी शुड हैव हेल्ड दिस 100.2 मार्क, बट वी डिडंट डू दैट, एंड फिर उस दिन हम लोअर मूव करके फ्राइडे को हमने रीटेस्ट भी किया ये सप्लाई. सो आई थिंक इट इज स्टिल पॉसिबल दैट वी मूव हायर फॉर लाइक अनदर रीटेस्ट ऑफ दिस 50-day moving average, and from there we like go down to at least 99.40. अभी के लिए मेरी बायस डॉलर के अंदर ऑनेस्टली बेरिश ही है जब तक मेरे को कुछ डिफरेंट डेटा चेंज होता हुआ नहीं दिखता. एंड एज यू कैन सी डेफिनेटली मेरी पोजिशनिंग में भी वो आप लोग को दिख रहा होगा कि आई एम लॉन्ग GBP USD एंड आई एम लॉन्ग यूरो USD जो कि लाइक डॉलर शॉर्ट प्रॉक्सी है. तो you can clearly see कि जो मेरी bias है on the dollar is bearish, and that is because fundamental factors अभी के लिए डॉलर के लिए उतने स्ट्रॉन्ग नहीं. एंड जो यूएस इकोनॉमी से हमें रिसेंट टाइम में डेटा मिला है लाइक जीडीपी ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, वो भी कहीं ना कहीं वीक दिखा है, प्लस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. तो लाइक देयर हैव बीन मल्टीपल डेटा मेट्रिक्स दैट हैव कम इन बेरिश फॉर द डॉलर. सो गोल्ड के अंदर मेरी जो बायस है वो डेफिनेटली बुलिश चेंज हो रही है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट मेरे को टेक्निकल लेवल से या टेक्निकल प्राइस एक्शन से वो सपोर्ट नहीं दिख रहा है जो मेरे को चाहिए इन ऑर्डर टू टेक अ ट्रेड. वी हैव क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन एटलीस्ट ऑन माई चार्ट. अगर आप डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखेंगे तो दे ऑफ कोर्स हैव देयर ओन वेजेस ऑन देयर ओन ट्रेंड लाइन्स, but like for me I think gold has definitely moved past this trend line. It's just that we
haven't had that kind of like a big breakout. And honestly अब मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, because I've taken a loss here already. So I don't really want to enter into a range bound market. मैं चाहता हूँ कि गोल्ड मेरे को some kind of like a breakout दे, and उसके बाद मैं देखूँ enter करने का. So how would then that look like is कि मैं चाहूँगा कि ये जो लेवल ऑफ सप्लाई है ये कहीं ना कहीं हम ब्रेक करें टुवर्ड्स द अपसाइड, इसको रीटेस्ट करें, एंड देन फ्रॉम देयर आई कुड लाइक लुक टू एंटर अ ट्रेड टुवर्ड्स द अपसाइड विद स्टॉप लॉस बिलो स्ट्रक्चर. सो ये मेरा एक थिंकिंग पॉइंट रहेगा गोल्ड के अंदर. बट अभी के लिए लाइक वी क्लियरली नॉट सीइंग दैट, एंड वी जस्ट काइंड ऑफ रेंज बाउंड इस रेंज के अंदर. सो अभी के लिए मेरी कोई लाइक एंट्री लेने का वो नहीं है. लाइक मेरी जो थिंकिंग है वो चेंज हुई है डेफिनेटली गोल्ड में. इट हैज टर्न मोर बुलिश, बट टेक्निकल लेवल पे मेरे पास सेटअप नहीं है. एंड एज यू गाइज ऑलरेडी नो, जब तक तीनों चीज़ें मेरे लिए अलाइन नहीं होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ. हाँ, मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस फंडामेंटल एनालिसिस को ज़्यादा देता हूँ. बट अभी के लिए ये सपोर्ट लेवल पे मेरे को एंटर करना लाइक विदाउट clarity is something that I don't want to do. I want to see कि buyers definitely step in कर रहे हैं, and फिर उसके बाद मैं trade लेने को सोचूंगा. So this is my plan on gold right now. Another thing that I wanted to mention is Bitcoin. So Bitcoin has honestly just been a disappointment this year. हमने काफ़ी selling देखी, and this was because uh, जो interest rates थे वो globally higher move कर रहे हैं because of higher yields. एंड उस वजह से क्या हो रहा है कि बिटकॉइन पे प्रेशर है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट्स हायर मूव करेंगे तो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा. एंड यूजुअली इन्वेस्टर्स एंड नॉर्मल रिटेल भी जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वही इन्वेस्ट करते हैं बिटकॉइन के अंदर. सो राइट नाउ बिटकॉइन इज डेफिनेटली अंडर प्रेशर. एंड मैंने ऑनेस्टली यहाँ पे देखा था कि एक रैली फॉर्म हो रही थी with this move, but that has also like kind of faded away with this higher low and higher high structure that we see on my screen. So हम देख पा रहे हैं कि ये एक हमने higher high बनाया, then we like this was a higher high as compared to this, but then from there we have started to make lower highs and lower lows again. So ये मेरे को एक काफ़ी like technically bearish chart ही लग रहा है, and I think this we're just in a consolidation period for Bitcoin. And I think the next move that we have from here will be interesting. Either we'll of course go lower. There are only two options: either we'll go lower or higher. But right now I don't really have a bias on Bitcoin. मेरे को ऐसा लगता है कि if I'm making a video, मेरे को अपनी bias क्लियर आप लोग को बतानी चाहिए, बिकॉज आई थिंक जो यूट्यूबर्स बायस नहीं बताते हैं या वो अपनी थिंकिंग नहीं बताते हैं, देन आई डोंट रियली सी द पॉइंट ऑफ दैट वीडियो. एंड इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट आपको, अगर मैं न्यूट्रल भी हूँ किसी चीज़ पे, तो भी मैं आप लोग को बताऊँ कि लाइक मैं क्यों न्यूट्रल हूँ एंड क्या वो है. तो लाइक आई सेड मैं न्यूट्रल हूँ, एंड मैं इसलिए हूँ बिकॉज मेरे पास वो फंडामेंटल रीजंस नहीं है अभी के लिए. बिकॉज आई थिंक बिटकॉइन को एक ऐसा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है जहाँ पे रेट कट्स हो रहे हो, इन्फ्लेशन लो हो, pretty much like the Goldilocks scenario that is needed for stocks as well. So वो environment अभी के लिए मुझे बिटकॉइन में नहीं दिख रहा है जो एक फेवर करे बिटकॉइन को towards the upside, and that is why I'm not really taking any trades at this time in Bitcoin. सो ऑयल के अंदर भी लाइक मैंने पहले जब यहाँ पे ऑयल था तब मेरे पास एक बुलिश रीडिंग थी, बट लाइक मैं उस दिन उतना एक्टिव नहीं था ट्रेडिंग वाइज, तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया एंड ये ट्रेड मिस हो गया. बट सिंस देन वी मूव्ड हायर. बट अगर मैं फंडामेंटल रीडिंग्स की बात करूँ तो दैट हैज़ बिकम अ बिट मोर सॉफ्ट फॉर ऑयल. जो मेरी रीडिंग पहले ज़्यादा बुलिश थी वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल टर्न हो गया बिकॉज ऑफ द रिसेंट इकोनॉमिक डेटा दैट वीव हैड फ्रॉम द यूएस. अब ये ऐसे वर्क करता है कि अगर आपकी इकोनॉमी वीक हो रही है तो उसकी डिमांड फॉर ऑयल विल ऑल्सो लाइक बिकम वीक. तो कहीं ना कहीं अभी इसलिए मेरी बायस ऑयल के अंदर न्यूट्रल हो गई है. बट आई थिंक अभी के लिए ऑयल मैक्रो एनवायरनमेंट से अफेक्टेड है, येस, लाइक ऑलवेज इट इज़ अफेक्टेड बाय दैट. बट अभी के लिए it is more affected by the conflict that we have between US and Iran, and जब तक वो चलेगा तब तक ऑयल के अंदर कुछ भी हो सकता है, एंड हम वॉलेटाइल डेफिनेटली रहेंगे इन ऑयल. सो अभी के लिए आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर ट्रेड्स इन ऑयल. एंड लास्ट ट्रेड मेरे को आई थिंक मैंने बहुत पहले ही लिया था, अब तो मैंने रिसेंट टाइम में ऑयल में कोई ट्रेड भी नहीं लिया है, जस्ट बिकॉज मेरा वो सेटअप नहीं फॉर्म हो रहा है. एंड जब हो रहा है तो या तो मेरे पास टेक्निकल सेटअप नहीं है या फंडामेंटल नहीं है, तो वो दोनों चीज़ें अलाइन नहीं होंगी जब तक, तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता. सो आई थिंक ये जो हम ट्रेंड लाइन पे डेफिनेटली सपोर्ट ले रहे हैं, एंड फ्रॉम देयर वी आर क्लाइंबिंग हायर.
जिस वजह से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस विल मूव हायर, बट वील डेफिनेटली हैव टू सी कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलता है. अगर ये एक्चुअली एक लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बनता है एंड 2-3 साल हम देखते हैं, तो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट इन्फ्लेशन in the US and like all over the world, because higher oil prices automatically mean higher inflation. So उस नज़रिए से हमें इस पे डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए. बट लाइक फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, आई डोंट रियली हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट इन ऑयल राइट नाउ. So with that, let's end the video here. Thank you so much for watching. So I'll be dropping another video either like tomorrow or maybe day after tomorrow. For you guys, I think that would be like Monday morning. So that video will be about Nvidia. So uski history and kya sab kaise hua. So that video will be on that. So if you guys are interested, do check that video out. एंड या फॉर दिस वीडियो दिस इज प्रीटी मच इट. मैंने अपनी पोजीशंस आपके साथ डिस्कस कर ही लिए हैं. इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स लाइक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स वाइज या कुछ आपको समझ ना हो रहा, सो यू कैन ऑलवेज आस्क देम डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर कोई हेल्दी डिस्कशन भी वी कैन डू दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. So thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next one.